Last time we concluded the dialogue between a disciple and the master, and when the disciple expressed the absolute, it was so much of the closeness of the expression with the actual truth that the master had to say that as far as the words can explain, the disciple has understood the truth as it is. But whatever remains beyond expression, whatever absolute that is to be known, but the words cannot express, that aspect of the absolute can be realized only through what is called as Nidhi Dhyasana. The first thing is Shravan, where one is to listen. Listen means one could read also. Then is the Manan, to think on the pros and cons, give your reasons, and form some conclusions. Then get those conclusions verified by a qualified teacher. All this is part of Manan. And at the end of the Manan, the teacher says, yes, your conclusions are right. Now you think deeply on your conclusions. When instructed by the teacher in this way, then the student is expected to start what is called as deep reflection on the conclusions, not on the theories, not on the possibilities. You have already got the truth, but you are supposed to think, or rather meditate deeply on the truth. Spend time on the truth. Be with the truth. Because that is what has not happened in our life. We have spent time with the untruth. We have thought a lot in ignorance. We have spent a lot of time discussing things which are wrong. So our life has been spent mostly with the untruth. So now the life has to be spent with the truth. Let the truth come. Let the truth come and use my eyes, so that I see through the truthful eyes. Let the truth come and stay with my ears. May I then hear the truthful sounds, because ears now will pick up only the truthful sounds. Let my speech invite the truth, and when the truth comes on my speech,
The speech that I will utter will be truthful speech, nothing but truth. Let my mind be pervaded by the truth. Enough of definitions that mind is a bundle of thoughts, mind is always thinking some thought or the other. Nothing of that sort now. Mind is a reservoir of truth. Intellect now is a reservoir of truth. So now the whole personality, the mind-body complex, the operating software is the truth. So what would manifest in the hardware also would be truth, truth and truth. This experience is a must. For this experience we are here on earth. To experience this we have taken a human birth. इसको आप जीवन मुक्ति बोलो, इसको आप रियलाइजेशन बोलो, इसको आप ब्रह्म ज्ञान बोलो. Again, don't get lost into terminologies and words, but practice nididhyasan means think deeply on the truth. So it's not that when one is thinking, one is not acting. You will not get a pause in life. Your life will not halt to allow you time to think, where you don't drink, you don't eat, you don't breathe. That's not a possibility. So when they say deep thinking on the truth, which has been arrived at by a proper study of scriptures. So this is a very important step in sadhana. This was the conclusion in the last talk. Today there is a meditation which is a meditation on two birds. In the same single tree of this body live two birds of beautiful plumage, Vijnanamaya Atman, also referred to by the term Jiva, the individual, and the Atman. Both are inseparable, great friends, having manifested themselves from the same cause. The Jiva bird eats the fruits of the tree, the pleasurable and the miserable results of his past karmas, while the Atman bird merely sits on, witnessing without eating. On this tree, the Jiva is stuck up, as it were, and so it moans and wails, being worried by its impotence. When it sees the other, the Lord and his glories, it is liberated from all sorrow, says the Mundaka Upanishad in the first two verses of the first section in the third chapter. The Shvetashvatara Upanishad also gives these two verses verbatim. Now we have to relate to our position. After studying scriptures, we also begin to feel that there are two birds inside us. One is the Karta Bhokta bird. Karta Bhokta. Karta Bhokta. Karta Bhokta. Do right action, you have happiness. You do wrong action, you have sorrow.
So sometimes you do right action, sometimes you are happy, sometimes you do wrong action, sometimes you are sad. And this bird can't go beyond this. Sukh dukh, sukh dukh, sukh dukh, sukh dukh, sukh dukh. So much so, बड़े बड़े लोग ऐसी ही बातें करते हैं, जीवन में सुख और दुख, जीवन में आना और जाना, जीवन में हार और जीत, जीवन में पाना और खोना, जीवन में यहाँ और वहाँ, ऐसा है जीवन। और लोग तालियां बजाते हैं जब ऐसी बातें सुनते हैं। ये तो एक बर्ड की बात हो रही है, और उसी जीवन में एक दूसरी बर्ड है, उसी इंसान के अंदर दूसरी बर्ड है जो ये सब कुछ देख रही है। उसको पता है कि इस बर्ड के साथ ऐसा हो रहा है, ये दूसरी बर्ड को पता है जिसके साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुझे सुख है, मैं देख रहा हूं कि अब तू दुखी है, मैं देख रहा हूं कि तू अब हार रही है, मैं देख रहा हूं अब तू जीत रही है। ना मैं हारा ना मैं जीता, मैंने हार और जीत दोनों को देखा। ये दूसरी बर्ड की पोजीशन है। और ये पहली बर्ड को भी पता है कि दूसरी बर्ड उसे देख रही है और उसे कुछ नहीं हो रहा, और दूसरी बर्ड को भी पता है कि पहली बर्ड के साथ ये सुख दुख चल रहा है। बड़ा मिस्टीरियस इन दोनों का संबंध है, दोनों बर्ड्स का। So obviously, after inquiry, after discrimination, after Shravan, after Manan, what have we done? If you just say that I have observed that there are two birds, ये सारी जिंदगी श्रवण मनन करने के बाद बस यही कंक्लूजन? आपका दिल नहीं करता कि अब आप पहली बर्ड ही बन जाओ, दूसरी बर्ड को उड़ा दो पेड़ से? ऐसी की तैसी तेरी सुख दुख बर्ड, भाग यहां से। मतलब हु इज इंटरेस्टेड इन दुख? बोलने के लिए तो ठीक है, जब आदमी बोल रहा होता है स्टेज के ऊपर और ऑडियंस बैठी होती है 300 लोगों की तालियां बजा करके, जीवन में दुख बहुत लंबा होता है। दुख के क्षण ऐसे होते हैं कि एक सुरंग की तरह, काली अंधकार की सुरंग, जीवन चलता जा रहा है और दुख का कोई अंत नहीं नजर आता। मन में एक फरियाद है कि दुख का नाश हो, लेकिन दुख ऐसा है कमबख्त कि वो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। दुख की वो अंधेरी रात, क्या बात की जाए उस अंधेरी रात की, जब सन्नाटा ही सन्नाटा है, खामोशी ही खामोशी है, तालियां बेतालियां बजे जा रही हैं। इसमें कोई दुख वुख नहीं है, ये काला वाला कुछ नहीं है। बहुत अच्छा एयर कंडीशन हॉल है, कंफर्टेबल सीट है, सब बैठे हुए हैं, लाइट सब कुछ ठीक ठाक है। ये तो जब ऑडियंस बाहर निकलेगा ना, पहले तो अपनी गाड़ी को पार्किंग में जाना पड़ेगा, या कोई शेयर्ड कार करके आए हैं, या कोई ओला बुक करेगा, फिर वो इतने सारे ऑडियंस है, एक एक करके गाड़ी आएगी, फिर वो होस्ट आएंगे, कहेंगे आप थोड़ा चाय पी लीजिए, तो चाय मिलेगा, वहाँ बड़ी लंबी लाइन है, चलो सोचते हैं चाय पीते हैं। फिर चाय मतलब इट विल नॉट बी ए परफेक्ट टी, या तो पत्ती ज़्यादा होगी, या दूध ज़्यादा होगा, चीनी कम होगी, या कुछ होगा, या ग्लास पूरा ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। फिर वो कुछ स्नैक्स ऑफर करेंगे, फिर आप डाउट करेंगे स्नैक लूँ नहीं लूँ, कल तो मेरा पेट खराब था, आज यहाँ भूख तो लग रही है, फिर क्या इतनी देर, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, चलो मैं बिस्किट खा लेता हूँ। डाउट के साथ बिस्किट, दुख स्टार्ट हो गया। वो अंधेरी रात अब शुरू हुई है जिसकी वो बात कर रहा था स्टेज के ऊपर, काली रात।
और ये जो दूसरी बर्ड है वो ये सब देखती है, और ये पहली बर्ड चाय पी रही है, बिस्किट खा रही है, दुखी है। नेचुरली दुखी का मतलब निकलना तो आदमी चाहता है दुख से, तो वो ये सोचता है कि एक बार ऐसा है कि मैं चीफ गेस्ट बन जाऊं, शायद चीफ गेस्ट का दुख कम होता है। बड़ी साधना की उसने, कई साल के बाद वो ऐसा आया कि वो स्पीकर भी बन गया और चीफ गेस्ट भी बन गया। फिर तो पहले जब पहुंचो तो पहले बुके रिसीव करो, फिर नमस्ते करो। अब नेचुरली होस्ट से पूछने कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, क्या करते हैं, बहुत देर पे ऐसे आपको पता नहीं होस्ट कौन है, फिर भी आप बात करना पड़ेगा। फिर जब आप स्पीच खत्म हो जाएगा फिर आपको लेके जाएंगे अलग से एक्सक्लूसिव एरिया में, बाकी लोग तो खड़े हो करके चाय पी रहे हैं, आपको बिठाया जाएगा। अब वो आप बैठ गए उस समय तो वहां तो ये ना टेबल पे जाके आपने चाय ली, उठाई, पिया और चले गए। अब तो आप सोफे पे बैठे हो, आप चाय उठा भी नहीं सकते, और वो लाते ही नहीं चाय क्योंकि उनको आपसे बातें करनी है। अब हो सकता है उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिटेड हो सकता है बच्चे को कहीं से ले पिकअप करना हो, कहीं जाना हो। अब महाराज चीफ गेस्ट तो फंस गए, वो तो सोफे पे बिठा दिया और चाय नहीं ला रहे, बात करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। एक आदमी कुछ बात करता है, दूसरा कुछ बात करता है। अब ऐसे कोई चीफ गेस्ट थोड़ी बताया, उनका कोई काम है, काम करवाना है, इसलिए चीफ गेस्ट बताया है। ये सारा शो तो एक प्रिपरेशन था सारा। आपके बच्चे का एडमिशन कराना है मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में। अब नेचुरली आप चीफ गेस्ट हो, चाय का इंतजार कर रहे हो, ऑडियंस मिला है, स्पीच मिली है, सब कुछ मिली है, हाँ हाँ मुझे बताइए, आपको बोलना पड़ेगा। अंदर से अब आपको डर लगना शुरू हो गया। अब ये तो ऐसा है कि वो जो बर्ड बैठी थी चुपचाप देखने वाली, अब वो भी उतर के सुख दुख बर्ड में बन गई वो भी। वो तो क्या अब सोचता मैं तो ऑडियंस अच्छा था, ये स्पीकर और चीफ गेस्ट तो बड़ा महंगा ट्रांजैक्शन। दूसरा कहेगा मेरी वाइफ ने एमए बीएड किया हुआ है, आजकल वो खाली है, वैसे मदर स्कूल जो है शी हैज डिजायर दैट वन डे शी कुड टीच इन द मदर्स इंटरनेशनल। अच्छा, आपको बोलना पड़ेगा अच्छा, पता है कोई वैकेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेट मी सी इफ आई कैन, व्हाट कैन आई डू। आप ऐसे करना, मेरे को आप उसका सीवी व्हाट्सएप कर देना। लाओ भाई चाय लाओ, अब चाय आएगी। वो जो स्पीच दिया था निधि ध्यासन के ऊपर, ये बच्चे की एडमिशन और ये टीचर की अपॉइंटमेंट, वो सारा निधि ध्यासन तो हो गया एक तरफ। अब वो he was मतलब speaker is supposed to be continuing in the निधि ध्यासन, not just giving a speech। अब उसका दिमाग तो चलने लगा कि अब ये टीचर वाले एस्पेक्ट को कैसे हैंडल करना है और ये बच्चे की एडमिशन को कैसे हैंडल करना है। यू विल बी लकी अगर इन दो चीजों से ही आपका छुटकारा हो गया। वो आपके फोन नंबर लेंगे, आपका कार्ड लेंगे, आपके साथ फिर नेचुरली दे वुड वांट अ रिमाइंडर, फिर कहेंगे आप लंच पे आ जाइए घर में। अब लंच पे तो तब जाएगा जब एडमिशन, so when the scriptures talk of these two birds, they talk of a situation at one unit of time at one particular place for a particular individual, that is all.
कब बर्ड ए बी बन जाए, कब बी ए बन जाए, या दोनों बी बन जाए? फिर वो जो आत्मा बर्ड है वो कहते हैं आत्मा मर गई, जमीर मर गया। हमने वो भी एक्सपीरियंस किया है, आत्मा को मरते हुए भी एक्सपीरियंस किया है, जमीर को मरते हुए भी एक्सपीरियंस किया है। When you don't listen to your conscience, उसको बोलते हैं guilty conscience. So we have lived with the guilt also. It's like वो जो बर्ड जो विटनेस किया करती थी, अब इसने क्या किया, नीचे वाली बर्ड ने जाके छलांग लगाई, एक घर में गई, वहां कपड़े सूख रहे थे, वहां से एक मफलर उठाया, ऐसे अपनी बीक के अंदर रख के लाई, और ये वाली बर्ड की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी, मफलर बांध दिया। आत्मा बर्ड जो विटनेस किया करती थी, वाज अनअफेक्टेड, वो जस्ट वॉचिंग, अब उसको पट्टी बांध दिया, उसको नजर भी नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड गिल्टी कॉन्शियस। सब ठीक है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। So we are very much concerned by the situation in which we are, and we are wanting to find a solution to come out of the situation. निकले थे ये दुखी वाली बर्ड को ऊपर पहुंचाने के लिए, आत्मा बर्ड बनाने के लिए। अब यहां तो उल्टा हो गया, आत्मा बर्ड भी दुखी होनी शुरू हो गई।